Students hears a lot about Australia, Canada, UK, USA. तो इस बार न्यूजीलैंड ही क्यों? तो ऐसे कोर्सेज वाकई में स्टूडेंट्स के लिए मतलब बहुत पॉपुलर है न्यूजीलैंड में। ऐसे कौन से हैं? मैम बात करेंगे अभी डॉक्यूमेंट्स की कि स्टूडेंट्स को कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि फाइल कहीं ना कहीं जाके वहीं रुकती है डॉक्यूमेंट्स के। व्हाट हैपेंस आफ्टर स्टडी? कैन स्टूडेंट वर्क इवेंचुअली एंड गेट पीआर? कैन आई टेक माई स्पाउस? व्हाट एक्चुअली मैटर्स? इसके लिए वीजा स्पाउस फाइल की क्या प्रोसेस है? Welcome to Expert Education and Visa Services YouTube channel. Australia's most trusted brand is now in Amritsar. I am Mahima, your host. We are diving deep into the New Zealand Study Visa 2026. And if you are confused about study visa, spouse visa, PRs, funds, तो हमारे साथ आज हमारे गेस्ट जुड़े हैं न्यूजीलैंड के एक्सपर्ट मिस चांदनी. So hello ma'am, tell me about yourself. Hi Mahima, thank you so much for inviting me today. I am Chandni, Regional Manager of Up Education, and Up Education is one of the largest education provider in New Zealand and Australia. So we have our headquarters in New Zealand. We offer a range of courses from University Partnership Foundation to diplomas through our colleges as well as bachelor's and master's degree. So the first question is this: students hears a lot about Australia, Canada, UK, USA. तो इस बार न्यूजीलैंड ही क्यों 2026 में? Alright, so we all know that there is a lot of news going on for study destinations, and I'm not picking one. So we hear a lot of news about different countries with time to time, but New Zealand is a destination where students look for quality education, the world recognized degrees, right? Also the lifestyle, there's a safety and a surety of a work life balance which everybody needs, and of course the post study work, right? The job opportunities. So that is why New Zealand is welcoming all the international students who can fulfill their skilled shortages and as well as can bring some new kind of perspective to their country. That makes sense. तो ऐसे कोर्सेज बहुत पॉपुलर हैं न्यूजीलैंड में, ऐसे कौन से हैं? Okay, so अभी in बहुत demand है. Students want to go for an IT course, teaching courses as well as healthcare. तो हमारे पास जैसे range of courses बहुत हैं. तो अगर मैं बात करूँ, हमारे पास NZMA में hospitality management course है, pharmacy है, cookery और baking है. So there are some popular course among North region specifically, जहाँ पे मैंने देखा है कि students बहुत ही willing होते हैं थोड़ा सा out of the box context पढ़ने का, क्योंकि हमारे box में है IT, medical, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ऑल दैट. बट यस, अगर आप थोड़ा आर्ट साइड स्टूडेंट के पास जाओ तो शायद उनके पास क्रिएटिव कोर्सेज के क्वेश्चंस होंगे. क्या मैं हॉस्पिटैलिटी कर सकती हूँ? क्या मैं स्पोर्ट्स में जा सकती हूँ? क्या मैं ट्रैवल टूरिज्म में डिप्लोमा कर सकती हूँ? सो वी हैव ऑल दीज कोर्सेज अवेलेबल. बट यस, somebody is looking forward to pursue a degree. We do have Bachelor of Software Engineering, Marketing, as well as also teaching courses that leads to teacher registration in New Zealand. So I would like to add कि there are some green list courses, और green list courses में आते हैं आपके IT course, आपके teaching course, आपके construction management courses. Okay, let's get practical. Students को कैसे पता चलेगा कि उनका बैकग्राउंड उस कोर्स से मैच कर रहा है या नहीं? Yes, so उसके लिए सही चीज है टू एस्पेक्ट्स. एक तो आपकी काउंसलिंग ऑफ कोर्स, दूसरा स्टूडेंट का खुद रिसर्च. तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, आपने जो भी पढ़ाई की है आप उसके बाद पहले खुद को टाइम देकर समझो कि आप क्या पढ़ना चाहते हो. और वो आपको आइडिया तभी मिलेगा जब आप उस कंट्री के इंस्टीट्यूशंस और उनके ऑफर्ड कोर्सेज के बारे में समझोगे. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद आप एक काउंसलर के पास आते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट एजुकेशन काउंसलर के पास आते हैं. दे विल गिव यू इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कि आपकी प्रोफाइल मैच कर रही है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल आप +2 बैकग्राउंड से हो, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, देर आर सम कोर्सेज ओपन एंड वेलकमिंग यू फ्रॉम एनी स्ट्रीम. फॉर एग्जाम्पल बैचलर ऑफ मार्केटिंग है हमारे पास, डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, डिप्लोमा इन ट्रैवल टूरिज्म है, तो बैचलर ऑफ टीचिंग कोर्स है. ये सारे कोर्सेज आपको बोलते हैं आप +2 किसी भी बैकग्राउंड से हो, इट्स ओके, यू आर मोस्ट वेलकम. बट हाँ, सर्टेन कोर्सेज होते हैं मास्टर्स लेवल पर, जहाँ पे आपको फिर रेलेवेंट बैकग्राउंड होना जरूरी है, एजुकेशन प्लस वर्क एक्सपीरियंस. ओके मैम, AIP रियली साउंड्स लाइक अ सेफ्टी नेट, और अगर मल्टीपल रिफ्यूजल्स हैं तो?
ओके सो एक चीज़ न्यूजीलैंड की अच्छी है, अगर आपके कोई रिफ्यूजल्स हैं प्लीज़ आप डिक्लेयर करें, चाहे वो आपका टूरिस्ट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा, जो भी कैटेगरी का वीज़ा रिफ्यूजल है वो आप डिक्लेयर करें। न्यूजीलैंड कॉलेजेस वांट टू अंडरस्टैंड कि आपका रिफ्यूजल किस बेसिस पे हुआ था, but they are more than happy to evaluate your profile and give you an offer letter. Okay. But when it comes to immigration, yes, there's a safety net. अनलाइक अदर कंट्रीज आपको पहले फीस नहीं पे करनी है वीजा लॉन्च करने के पहले, यहाँ पर आप पहले वीजा लॉन्च करें जब आपका इनिशियल डिसीजन जो होता है आपके पूरे प्रोफाइल पर, जिसमें आपका सिर्फ एकेडमिक ऑफर लेटर या फिर फंड्स, जो भी हम बात करें, सारे डॉक्यूमेंट जब तक वीजा इमिग्रेशन देख नहीं लेता तब तक आपको वो एक first green flag nahi dete, which is AIP. And but when you get the AIP, that's a safety net, of course. Then it means you have gotten the first level of visa approval. You can pay now the fees and then get a final decision on your visa, which comes really fast after AIP and paying the fees. So that is why it's a safety net in comparison to other countries where ऐसा system नहीं होता है. ओके मैम, स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि डुलिंगो, आइल्स, पीटी मतलब क्या एक्सेप्टेड है इसके लिए? ओके सो फॉर न्यूजीलैंड आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स की NZQA एक बोर्ड होता है, जैसे हर कंट्री में एक इंस्टीट्यूशंस को रन करने के लिए बोर्ड होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडिया में UGC है, राइट? वहां पर NZQA है, राइट? न्यूजीलैंड क्वालिटी असेसमेंट. वो बोर्ड एक सर्टेन इंग्लिश लैंग्वेज एक्सेप्टेंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आइल्स, पीटी, टोफल, लैंग्वेज सर्ट, कैम्ब्रिज, है ना? सो आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि जब भी आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप एक तो NZQA वेबसाइट पर जाइए और अपने इंग्लिश लैंग्वेज कौन से एक्सेप्टेबल है वो चेक करिए. वहां पर उन्होंने कौन से, फॉर एग्जाम्पल आपने डिप्लोमा लेवल 5 अप्लाई किया, बैचलर लेवल 7 कोर्स अप्लाई किया या मास्टर्स लेवल 9 अप्लाई किया, उन्होंने सारे लेवल के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर अच्छे से मेंशन किए हुए हैं फॉर एनी ऑफ द टेस्ट यू आर टेकिंग, विच इज गुड. तो मेरे पास कल एक स्टूडेंट आई एंड शी वाज टेलिंग कि मैम मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बताया है कि ऐसा है वैसा है. मैंने कहा आपने किसी से कहा कि कहाँ लिखा है बताओ? तो शी जस्ट स्माइल्ड एंड आई सेड कि देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं, आपको गाइड करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देते. सो जब भी कोई भी कुछ मुझे बोलता है तो मैं कहती हूँ कहाँ लिखा है प्लीज दिखाना. Okay ma'am, what if I graduated 4-5 years back, what's acceptable? See, it's okay that if you graduated after like you've completed your bachelor's, right? और अगर आपने अपने बैचलर्स करने के बाद कुछ वर्क एक्सपीरियंस गेन किया है, या मे बी आपने शायद कुछ सेल्फ इनिशिएटेड सेल्फ स्टार्टर बिजनेस किया हो, इट्स ओके. पर हर कंट्री की तरह देखो न्यूजीलैंड भी गैप जस्टिफिकेशन मांगता है आपसे. तो आपके पास अगर जस्टिफाइड गैप है और आप मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, you will be more than welcome to get your profile assessment done. So ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपने 5 साल पहले ग्रेजुएट किया है. इट्स ओके, मे बी आपने शायद 10 साल पहले भी ग्रेजुएट किया, लेकिन आप शायद कंटिन्यूसली वर्क कर रहे थे, मे बी आप सोसाइटी को कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे थे, मे बी वर्किंग विद NGOs or something. It's okay as long as you have a gap justification, you are eligible. So for a student who can be there for sponsors, राइट? सो स्पॉन्सरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि एक न्यूजीलैंड का इमिग्रेशन वेबसाइट है. सो जब भी आपको कोई डाउट अपने स्टूडेंट वीजा रिलेटेड क्वेश्चन से, आप प्लीज वो वेबसाइट विजिट करिए. वहां पे आपको ड्यूरिंग स्टडी या बिफोर अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट वीजा सारे एक लिस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट्स है. ठीक है? वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि स्पॉन्सर अभी आपका एक ही हो सकता है. अब वो एक स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है, मे बी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो शायद आपके इन-लॉज हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, बट आपका स्पॉन्सर एक एक्सेप्टेबल है इंक्लूडिंग योर बैंक स्टेटमेंट्स. सो दिस इज व्हाट एज पर द रूल ऑफ न्यूजीलैंड इमिग्रेशन. सो प्लीज कीप चेकिंग द वेबसाइट एज वेल. Since we are talking money, students पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर सकते हैं? Yes, so as of today 20 hours per week is allowed during your studies, and full time you are allowed to work during time break. जैसे vacations हो गए आपके, या Christmas New Year break हो गया, so आप full time eligible हो. I would like to add on again कि immigration plan कर रहे हैं 25 hours करने का per week during study, but जैसे मैंने बोला as of today it is 20 hours. So for any changes again you can refer to Immigration New Zealand website. Okay ma'am. And ma'am, what about scholarships? Yes, that's a good question. So see,
every institution offers certain kind of scholarship, to be very honest. Within up education, we have UB College, we have New Zealand Tertiary College, we have NZMA, and we also have university partnership. We are offering scholarship across all these, institutions and all the programs that we are offering. Now the process is very important to understand, which is, if you are applying, if you get conditional offer letter, good, please fulfill the requirement of conditions. And once you get the unconditional offer letter, please apply for the scholarship, because scholarships are not automatically granted. So you must apply within the time. You can students can contact the counselor and they just say कि please मेरा scholarship apply कर दो. तो अगर मैं scholarship की बात करूँ तो up to $10,000 scholarship है, which is really helpful for a lot of students who can save money and utilize that money for their living cost, right? So yes, we do offer. मैम बात करेंगे अभी डॉक्यूमेंट्स की कि स्टूडेंट्स को कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि फाइल कहीं ना कहीं जाके वहीं रुकती है डॉक्यूमेंट्स पे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? राइट, सो कुछ बेसिक लिस्ट हैं जो स्टूडेंट को अपने खुद के चेकलिस्ट में भी डालना चाहिए. फॉर एग्जांपल, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हों, 10th का ऑफिशियल मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का ऑफिशियल मार्कशीट सर्टिफिकेट, इवन बैचलर्स के भी. सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट सबमिट मार्कशीट बट उनके पास फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं होता. अब जैसे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट दें. हम समझते हैं कि 1 साल लगता है फाइनल डिग्री आने में, बट स्टिल एटलीस्ट प्रोवाइड प्रोविजनल सर्टिफिकेट. इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कोर्स, पासपोर्ट कॉपी जो कि आपका एक्सपायर ना हो रहा हो, अगर एक्सपायर होने वाला है तो जल्दी रिन्यू कराएं, है ना. एंड देन ऑल्सो देयर आर सम फाइनेंशियल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स. स्पॉन्सरशिप का जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, बैंक स्टेटमेंट, ITRs, these are very important documents that needs to be submitted. So again, there is a checklist for financial document on immigration website. So student can refer to it, and of course we are here to answer any queries in future if they have. Well, what happens after study? Can student work eventually and get PR? All right, so PR is yes one very interesting question. A lot of students ask. So the thing is that there are certain green list courses जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था. So green list courses हैं आपके टीचिंग के, green list कोर्स हैं आपके IT के, देन आपके कुछ एजुकेशन रिलेटेड, नर्सिंग हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज हैं, राइट. सो इन कोर्सेज के साथ आपको पोस्ट स्टडी वर्क राइट मिलता है. फॉर एग्जांपल, इन माय कॉलेज, इफ स्टूडेंट इज गोइंग फॉर अ मास्टर ऑफ IT कोर्स इन UB कॉलेज, दे विल गेट 3 year of stay back. 1 year का मास्टर डिग्री एंड 3 year का स्टे बैक. नाउ व्हाट दे हैव टू डू, बिकॉज 1 year के मास्टर्स के साथ ही उनको 5 PR पॉइंट्स मिल रहे हैं बिकॉज इट्स अ ग्रीन लिस्ट कोर्स. सो यहाँ तो इनकी लाइफ आधी वैसे ही सॉर्टेड हो गई. बट येस, इमीडिएटली दे शुड फाइंड अ जॉब, जो कि बहुत टफ नहीं होता है अगर आपने अपने इंटर्नशिप में बहुत अच्छे से मेहनत किया हो, नेटवर्किंग की हो, राइट. सो अगर आपने वो जॉब मिल गई, आपको 1 year और वर्क करना है ताकि आपके 6 PR पॉइंट्स बन जाएं और देन आप PR लगाए. बट हाँ, द वन थिंग जो मैं सबको ही बोलती हूँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी. जैसे आप अपनी कंट्री में मेहनत करते हो पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, वही सेम आपको हार्ड वर्क वहाँ भी करना होता है. सो नथिंग कम्स इजी, यू हैव टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट. ओके मैम, इट्स माय पर्सनल क्वेश्चन. कोई ऐसे कोर्सेज जो आर्टिस्ट के रिलेटेड हो, लाइक आर्टिस्टिक फील्ड? आर्टिस्टिक फील्ड के रिलेटेड तो नहीं, बट मैं एक कोर्स बताती हूँ आपको. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट would love to become a art teacher or a music teacher in a school, and that can be offered through graduate diploma of teaching course at New Zealand Tertiary College. So अगर आपको टीचर बनने में इंटरेस्ट है तो आप टीचिंग कोर्स करें और आप स्पेशलाइज टीचर बन सकते हैं अगर आपके पास रिलेवेंट बैकग्राउंड भी है ऑलरेडी. सो लेट्स से आपके ऑलरेडी कुछ म्यूजिक रिलेटेड क्वालिफिकेशंस हैं, है ना, या आर्ट्स रिलेटेड. सो आपके लिए बेस्ट है ये टीचिंग कोर्स करके वहाँ जाना. मैम, ऐसी कौन कौन सी सिटीज हैं जहाँ पे आपके कैंपसेस अवेलेबल हैं? Alright, so we do have our campuses initially Auckland, जो कि सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट की फर्स्ट चॉइस होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू हैव वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च, हैमिल्टन. बट एक हमारा न्यूजीलैंड टर्शरी कॉलेज के जो कोर्सेज हैं टीचिंग के, वो होम सेंटर बेस्ड कोर्सेज होते हैं. तो अक्रॉस न्यूजीलैंड आप वो कोर्स कहीं पे भी कर सकते हो, इवन इन क्वींसटाउन. Now we are talking about Queenstown of New Zealand, not the Queensland of Australia. So ये Queenstown और Queensland में गड़बड़ नहीं करना, ठीक है? When should someone choose New Zealand over Australia? Yeah, that's always a tricky question, but it's always an interesting question. I would like to add कि New Zealand
में जो वर्क लाइफ बैलेंस है ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड इट हैज आल्सो बीन रैंक्ड एज वन ऑफ द पीसफुल एंड सेफेस्ट कंट्री इन टॉप 10 कंट्रीज इट हैज बीन लिस्टेड. सो अगर किसी को बहुत ही स्ट्रांगली अपने यू नो वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर काम करना है, सो दे इट शुड बी द फर्स्ट चॉइस. ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज है. मोर ओवर आपको पता होगा न्यूजीलैंड में आप टैप वाटर आराम से यूज कर सकते हो. सो देयर इज नो सिस्टम ऑफ कि आपका बॉटल का पानी होना चाहिए, प्लास्टिक बॉटल का, एंड ऑल दैट. दे आर वेरी मच एनवायरमेंट फ्रेंडली पीपल एंड दे बिलीव इन स्ट्रेंथनिंग द एनवायरमेंट. तो आप बस नल खोलो, पानी पी लो, चलेगा. ऐसे ही हुआ था मेरे साथ होटल में. सो आई केम टू नो व्हेन आई वाज देयर कि अच्छा इधर अपना पानी बस ग्लास से ऐसे ही पीने गए. तो यहाँ तो 1000 बार सोचना पड़ता है. यस एग्जैक्टली. जब आप बाहर से आएंगे तब आपको यहाँ पे सिर्फ बॉटल का पानी ही डाइजेस्ट होगा, राइट. सो या वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है. ऊपर से वेदर बहुत अच्छा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. व्हेन यू गो टू वेलिंगटन इट्स टू विंडी कि आपके पास एक ओवरकोट होना चाहिए सिर्फ आपको विंड से बचाने के लिए, अदरवाइज आपको बहुत ठंड लगेगी. बट इट इज रियली वेरी ब्यूटीफुल. सो लैंडस्केप्स, माउंटेन्स, यू नो क्वींसटाउन इज फुल ऑफ आइस. स्कीइंग करो आप. एडवेंचर्स के लिए अगर कोई अपनी लाइफ देख रहा है तो उधर बहुत अपॉर्चुनिटीज है. यू कैन डू साइकिलिंग, वॉक अराउंड, यू कैन गो ऑन हाइकिंग, माउंटेन हाइकिंग, बीचेस है, यू नो. सो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है. एंड यस एज आई सेड, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, सेफ्टी, दैट इज देयर. Okay, ma'am. Before we wrap, some rapid fire questions. Past refusals, can I apply? Yes, definitely you can apply. Just submit your any visa refusal with us, and you are most welcome to apply. Duolingo accepted? Duolingo not accepted at the moment because NZQA do not approve it. Okay. And 1 year diploma worth it? Of course, see, if you are someone who is looking for a short-term course, and also you maybe have a financial strains, definitely you can go for a 1 year diploma in which you have hospitality, tourism, health, pharmacy related courses as well. Okay, living cost, how much? Yeah, it is $20,000 for 1 year. So you must have that much of amount to show. Ma'am, we have heard Maori culture. तो ये इंडिया से कैसे सिमिलर है? Yeah, so one thing about Maori people I really love about is the kindness, the values they believe in, and also they are very close to their old culture. So I think India में भी हम इसी चीज को respect करते हैं. हम अपने culture से बहुत ही attached हैं. हम अपने tradition को follow करते हैं. We are also really kind, and that actually makes all of us meeting the same goal of humanity. So Maori are really very welcoming, very warm people, and मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है जब मैं ऑकलैंड में. अच्छा एक चीज है, आपको ना वॉक करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा वहां पर बहुत ज्यादा. सो मैं जब फर्स्ट डे गई तो मुझे इतना वॉक करना पड़ा कि मैं लिटरली टायर्ड होकर ना बस स्टॉप पर बैठ गई. सो देयर वाज अ लेडी गोइंग पासिंग फ्रॉम देयर, कहते आर यू ओके, डू यू नीड एनी हेल्प. मैं शॉक हो गई क्योंकि ये यूजुअली आपको नहीं मिलेगा, यू नो, किसी फॉरेन कंट्री में तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो. बट आई वाज रियली टच्ड एंड आई सेड नो नो आई जस्ट गॉट टायर्ड, सो यू नो आई एम जस्ट रेस्टिंग. एंड शी सेड ओह जस्ट गेट वेल सून एंड wear comfortable shoes and everything. She gave a tip. So yeah, they are really really hospitable, very kind, very welcoming. You will feel that. ये कोई पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे लोग मतलब इस चीज को मानते हैं या पूरे न्यूजीलैंड में? नहीं, पूरे न्यूजीलैंड में ही, क्योंकि जैसे आप कह सकते हो कि हर कंट्री का एक बेस होता है फॉर्मेशन का. ये बस उनका भी बेस है फॉर्मेशन का. यस. सो मैम, स्टूडेंट्स का हमेशा एक क्वेश्चंस रहता है अकोमोडेशन के रिलेटेड, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? ओके, सो जो स्टूडेंट हमारे पास अंडर 18 यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप के लिए आते हैं उनके लिए हमारे पास अकोमोडेशन होता है, होम स्टे ऑप्शंस. बट अगर कोई भी स्टूडेंट अबव 18 है और उनको अकोमोडेशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, सो वी हैव आवर ओन डिपार्टमेंट अकोमोडेशन ऑफ अप एजुकेशन. सो ओवर ईमेल यू कैन गेट अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम अस, पर वो आपको बुक अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग करना होगा. अगर मैं रेंज की बात करूं तो देखो $1,000 to $1,200 इज अप्रॉक्स योर मंथली एक्सपेंस फॉर अकोमोडेशन. अब डिपेंड करता है कि आप डबल शेयरिंग ले रहे हो, ट्रिपल शेयरिंग ले रहे हो या प्राइवेट रूम ले रहे हो. बट हाँ, डू योर ओन R&D प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ लिस्ट एंड देन आप बुकिंग करो, ताकि जब आप पहुंच जाओ तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम ना हो या आपको कोई डिफिकल्टी ना हो. ओके मैम, फाइनली एज एन एक्सपर्ट आपके स्टूडेंट्स को क्या थॉट्स होंगे जो न्यूजीलैंड स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं? यस, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज आप
आपको हमेशा अपने इंटरेस्ट का कोर्स पिक करना चाहिए। जी। अगर आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज हूँ तो यस प्लीज गो थ्रू द लिस्ट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल इन न्यूजीलैंड। ठीक है, ये आपके लिए एक जनरल सजेशन है कि आप पहले कोर्सेज इवेलुएट करो एंड देन फाइनलाइज करो। सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट होता है आपका बजट, जो कि आप कोर्स के अकॉर्डिंग देख रहे हो, बट साथ ही साथ आप ये भी देखो कि उस कोर्स से आपका कितना बेनिफिट है, आपको जॉब्स कितने मिलेंगे, किस टाइप के मिलेंगे, किस सिटी में मिलेंगे। सो लॉट ऑफ स्टूडेंट लैंड अप पिकिंग ऑकलैंड, बट आप एक चीज जानो, जैसे सिडनी मेलबर्न एक्सपेंसिव है क्योंकि वो फर्स्ट चॉइस है इंटरनेशनल स्टूडेंट का, उसी तरह कुछ सिचुएशन ऑकलैंड के साथ है। तो ट्राई एक्सप्लोरिंग अदर सिटीज एज वेल। हैमिल्टन 1 घंटे का ड्राइव है ऑकलैंड से, वो ट्राई कर सकते हो आप। वेलिंगटन जा सकते हो, क्राइस्टचर्च जा सकते हो, दीज आर ऑल्सो द गुड सिटीज। तो आपका कोर्स सिलेक्शन, ROI, आपका सिटी सिलेक्शन, अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू दैट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर आप ऑफ कोर्स एक्सपर्ट एजुकेशन टीम है यहाँ पर आपका एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, बट ऑफ कोर्स उसके पहले वो आपको पूरी क्लैरिटी देंगे आपके पूरे प्रोसेस की। सो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट पर्सनली। इज द अल्टीमेट क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट। तो ऐसे कौन से कोर्सेज हैं पीआर के रिलेटेड और ऐसे कौन से ग्रीन लिस्टेड कोर्सेज हैं आपके पास, स्टूडेंट्स को बताइए। यस, सो हमारा योबी कॉलेज है जो कि 30-year ओल्ड इंस्टीट्यूशन है एंड वी आर ऑफरिंग 3 मास्टर्स कोर्सेज, मास्टर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स एंड मास्टर ऑफ हेल्थ केयर इन्फॉर्मेटिक्स। ये तीनों ही ग्रीन लिस्ट कोर्स है, पर हमारे पास एक बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो भी ग्रीन लिस्ट कोर्स है। द बेस्ट पार्ट इज दैट जो आप मास्टर्स कोर्स करते हो वो 1 साल का मास्टर्स में आपको स्ट्रेट 5 PR पॉइंट्स मिलते हैं, प्लस आपको 3 साल का स्टे बैक मिलता है। The another best part is that you can take along your spouse and dependent child if you have, because अगर आप married है तो I'm sure आपका concern होगा कि मैं अपने spouse को ले जा सकते हैं या नहीं, तो ये हमारे पास योबी कॉलेज में है। Now second is our New Zealand Tertiary College, जहाँ पर हम टीचिंग कोर्स ऑफर करते हैं जो कि सारे के सारे ग्रीन लिस्ट है। बैचलर ऑफ टीचिंग 3 साल का, ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ टीचिंग 15-16 मंथ्स का, एंड देन मास्टर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अगेन 15-16 मंथ्स का। ये तीनों ग्रीन लिस्ट कोर्स है, तीनों ही टीचर रजिस्ट्रेशन इन न्यूजीलैंड लीड करते हैं एंड ऑल्सो ग्रीन लिस्ट मीन्स आप अपने स्पाउस को ग्रेजुएट डिप्लोमा या मास्टर लेवल पर ले जा सकते हैं। सो इन सब का भी आपको बेनिफिट होगा स्टे बैक के साथ साथ PR पॉइंट्स का, और इन कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक लास्ट कोर्स है हमारे पास न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एट NZMA, वो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, वो ग्रीन लिस्ट कोर्स है। उसमें स्पाउस तो नहीं ले जा सकते क्योंकि वो +2 के बाद अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए तो आप वो कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपका 2 साल का स्टे बैक है, और आपको आगे फर्दर अगर ग्रीन लिस्ट जॉब रोल्स मिलता है तो आपको PR भी आगे मिलेगा। सो दीज आर द ग्रीन लिस्ट। ओके मैम, कैन आई टेक माई स्पाउस, व्हाट एक्चुअली मैटर्स, इसके लिए वीजा स्पाउस फाइल की क्या प्रोसेस है? ओके, सो जैसे आपने ग्रीन लिस्ट कोर्स अप्लाई किया मास्टर्स इन योबी या फिर ग्रेड डिप और मास्टर ऑफ टीचिंग इन न्यूजीलैंड टर्शियरी कॉलेज, इन कोर्सेज में आपको आपके स्पाउस को ओपन पार्टनर वर्क वीजा मिलता है और आपके डिपेंडेंट चाइल्ड को फ्री ऑफ एजुकेशन मिलता है न्यूजीलैंड में। नाउ देयर आर सर्टेन वीजा क्लॉजेस विच आई अगेन रिकमेंड कि आप इमिग्रेशन न्यूजीलैंड पे भी देखें। ऐसी कौन सी मूवी है जिसकी शूटिंग न्यूजीलैंड में किसी ऐसी लोकेशन, कोई ऐसी लोकेशन बताइए जहाँ पे होनी चाहिए थी, ब्यूटीफुल लोकेशन? आई थिंक DDAJ इन क्वींसटाउन या वो स्विट्जरलैंड को बीट कर सकता है आराम से। और स्टूडेंट्स का जब वीजा आ जाता है तो उनका रिएक्शन क्या होता है, या उनके पेरेंट्स का कोई ऐसा रिएक्शन जो आपको आज तक याद हो? आई थिंक बहुत सारे हैं, पर उसमें से एक स्पेशली है। हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड पार्टनरशिप के साथ एक स्टूडेंट का अंडर ग्रेड जो कि 17 years ओल्ड थी एंड शी वाज गोइंग फॉर अ फाउंडेशन कोर्स, उसका फर्स्ट वीजा रिफ्यूजल हो गया एंड शी क्राइड अ लॉट ओवर फोन, कंटिन्यूअसली कॉलिंग मी, मैम मेरा वीजा रिफ्यूजल कैसे हो गया, मेरा सब कुछ अच्छा था। आई सेड डोंट वरी, वी विल ट्राई टू जस्टिफाई द इमिग्रेशन एवरीथिंग एंड आई बी इन टच एंड I'll keep updating you about everything. फाइनली 3 महीने के पेशेंस के बाद उसका वीजा आया और वो जो खुशी के मारे रो रो कर मुझे फोन पर थैंक यू बोल रही थी, इवन उसके फादर भी, वो मेरे लिए बहुत टचिंग मोमेंट था। मेमोरेबल हो गया। एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप एक टीनेजर से बात करते हो आप समझ सकते हो कि वो वैसे ही बहुत छोटे बच्चे हैं
और वो थोड़े नर्वस भी हो जी, जाते जी, हैं, जी, जी. बट उनके पेरेंट्स भी बहुत थैंक यू बोलते रहे, और जब तक वो बच्ची न्यूजीलैंड नहीं पहुंच गई मैं उसके टच में थी, सो दैट आई कुड guide her properly. So that was really touching moment for me. That's great. Thank you so much, ma'am. Thank you for your time. Thank you. And please, one line for expert education. Well, experts are experts, no doubt. The name says it all. But yes, you guys are champions across all the subcontinent, Australia, and you have an office in New Zealand as well. Yeah. So I'm really happy and looking forward to work more closely with expanded offices and Yeah. team. But yes, you are the best. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.